Principal Ma'am, teachers, parents, and my dear friends. So now I would request Principal Ma'am to address the congregation. Good afternoon, parents and children and teachers. It's a delight to meet you all like this, even though we are meeting on a virtual platform. And this session has been pretty hard on us as well as on children. I'm sure the children must have been handful with you. You must have had your hands full with children all the time around you in this at home. But I'm sure my children are very dear. They are very disciplined, and I'm sure they won't have been much trouble to you. The reason why we decided to have this kind of class show was that we felt that the children should feel that their talent is being, the hidden talents don't come out. These functions are actually a step towards identifying the various talents in our children and what is the USP of our school, that we always believe that there is life beyond textbooks and exams. Now, the reason why we are having this function on this virtual platform is that we've been getting requests from parents as well as children to organize something like this. In fact, I attended class 6 show today, and there were quite a many participants there, quite a many participants. And here we are not, our idea is not to ensure whether the children are doing it with perfection. It does not matter बच्चे कॉस्ट्यूम क्या पहनते हैं यहाँ पर. हमारा सिर्फ आइडिया एक ही था कि बच्चों को एक स्टेज प्रोवाइड करें जहाँ पे बच्चे रिलैक्स कर सके, एंजॉय कर सके, डांस, सिंगिंग जो उनका एक पैशन है उसको हम एक्सप्लोर कर सकें. So I'm sure this is going to be fun. This was our way of celebrating 26th of January, the Republic Day. This was our way of doing it to remember our freedom fighters, to remember our great leaders from the past, and an initiative where we want our children to know about these great people. So I'm sure these children are going to perform well, and I hope and pray all of you are keeping fine, all of you are healthy, safe, and staying at home, taking all precautions, children. I would like to just reinstate what we've been saying all this time. Stay at home, wear your mask, sanitize, wash your hands every time you go out, and children maintain social distancing. That is the most important thing that you people have to start following now. पेरेंट्स आपको बताना चाहूंगी कि हमने 10th और 12th के लिए इस बार प्री बोर्ड स्कूल में किया है. बस 2 पेपर्स रह गए हैं बच्चों के, और फरवरी से हम 9th और 11th को बुलाना शुरू करेंगे. एंड वी आर होपिंग कि 6th, 7th, 8th को भी हम अप्रैल ऑनवर्ड वी स्टार्ट इन अ स्टैगर्ड मैनर. और आप लोगों के साथ एक और न्यूज शेयर करना चाहूंगी कि there's a very strong possibility हमारा स्कूल सेंटर बनेगा. We've already received an oral message from CBSE. Telephonically they've informed us हमारा स्कूल बोर्ड का सेंटर बन रहा है for the first time. So CBSE के 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स हमारे स्कूल में चलेंगे मई और जून में. तो शायद उस टाइम में हम बच्चों को ना बुला पाए. So हमारी पूरी कोशिश है कि अप्रैल में 6th, 7th, 8th भी बच्चे स्कूल आ सके. And we will ensure the complete SOP is followed by children, by teachers, and everybody. So let's hope that we meet each other very, very soon, children. And I'm sure you'll enjoy the show as much as the teachers have enjoyed, coordinating with the children. And I would like to thank you all the parents of the participants, because I'm sure a lot of effort has gone in from their side also. Thank you so much, parents. And let's a happy new year also to all of you. Let's hope we meet in person very soon. All the best, children. All the best, class 7. Vanita, let's begin. Yes, ma'am. So, Anjali. Yes, ma'am. A very warm welcome and good morning to one and all present here. Although, so I would request all of you to switch on your cameras and switch off your microphones. Although many freedom fighters are born in our
So Anjali, you're not audible, beta. Begin. Yes, ma'am. A very warm welcome and good morning to respected director sir, principal ma'am, teachers, parents, and my dear friends. So, before we start, I would just request all of you to switch on your cameras and switch off your microphones. धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम लोग आपको याद दिलाएंगे देशभक्ति का जज्बा जो आपको उन्हें आपके देश के प्रति जागृत करेगा। By a small class show conducted by class 7. Although there are many freedom fighters born in our country, and today we are going to give our full respect and devotion to one of them. Yes, he is Netaji Subhash Chandra Bose. Today, we are going to celebrate 124th birth anniversary of Netaji. Good morning all. My name is Shanti. Today I am going to present a song on Subhash Chandra Bose. दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे फौजी बन के रहना है दुख दर्द मुसीबत सहना फौजी बन के रहना है दुख दर्द मुसीबत सहना है सुभाष का ये कहना है चलो दिल्ली चल के रहना है हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे हम गोली खा के झूमेंगे मौत को भांग के चूमेंगे मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगली घूमेंगे सुभाष हमारा हावी है चलो दिल्ली चल के रहना है हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे थैंक यू धन्यवाद शानवी आज हमारी सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए अपने देश के प्रति अपनी जान देने की इच्छा ताकि भारत जिंदाबाद रहे बिना जोश के आज तक कभी भी महान कार्य नहीं हुए अपने ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी वचनों से विक्रांतिकारी कार्यों से लोगों को अपने साथ जुटाया उस महान वीर ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना हाथ बढ़ाया As we all know that Netaji left Congress. But why is it so? To know this, my friends are before you to show a small conversation between Netaji and Gandhi ji. आप ही ने तो मुझे कांग्रेस का राष्ट्रपति बनाया था जबकि मैं देश निकाले पर था अब जब मैं खुद से जीता हूँ आप मुझे नहीं चाहते मैंने ऐसा क्या किया है बाप हम सबको अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए सुभाष क्या आपको लगता है कि मैं आपके बताए हुए रास्ते से अलग चलने की कोशिश करूंगा क्या आप इसलिए चाहते हैं कि मिस्टर अगर अभी भी तुम पार्टी के अनुशासन में चलने की प्रतिज्ञा करो और अहिंसा का व्रत कर लो तो कांग्रेस तुम्हारे साथ काम कर सकती है अहिंसा एक समय में बहुत अच्छा हथियार था मैं मानता हूँ बापू पर वो समय शांति का था अब जबकि सारी दुनिया में जंग के नगाड़े बज रहे हैं तो अहिंसा की बांसुरी कौन सुनेगा लेकिन सुभाष हमारी पार्टी के भी कुछ नियम है और हम सबको उनका पालन करना पड़ता है तथा हम सबका पालन तुमको भी करना पड़ेगा क्या आपको नहीं लगता अगर विश्व युद्ध का फायदा उठाकर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला फिर ऐसा मौका कभी नहीं आएगा मुझे लगता है ये गलत है हमें अपने दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय पर नहीं दबाना चाहिए पहले विश्व युद्ध में तो हमने उनकी मदद की थी बदले में हमें क्या मिला वैलेंटाइन जलियांवाला बाग अगर हम इस बार भी चूक गए तो शिकंजा इस तरह कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे ये चुप बैठने का समय नहीं है बापू इसलिए तो मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रहण की अपील की अकेला जना बाहर नहीं तोड़ सकता इससे कुछ नहीं होगा बापू ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो आज से हम दोनों अपने अपने तरीकों से स्वतंत्र अभियान को जारी रखेंगे बेशक हमारे रास्ते अलग अलग है आजादी पाने के लिए
लेकिन हम सपूत तो इसी भारत माता की है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कभी कम नहीं होगा सुभाष। कभी आपने ही कहा था महात्मा जी, अगर अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ है तो आगे बढ़ने से डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूँ सुभाष। फिर भी अगर तुम अपने तरीकों से भारत को स्वतंत्रता दिला सके तो देखना, सबसे पहले तुम्हारी पीठ थपथपाने मैं ही आऊंगा। फिर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मार्ग पर आजादी पा सकूं। आइए उनके ऐसे ही कुछ अनुभवों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए चलिए स्वागत करते हैं गरिमा का। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Now, I don't think that I need to give any introduction about my speech because this slogan has specified everything. Good morning to one and all present here. Today, I, Garima Chehal from class 7C, feels immense pleasure to speak about a great leader who doesn't need any introduction. Yes, I'm talking about Netaji Subhash Chandra Bose, who was a great leader, nationalist, as well as a prosperous man. He was born on 23rd January 1897 and started his journey by becoming a youth educator, journalist, and commandant of Bengal Congress volunteers. His activities led his imprisonment in 1921. In 1924, he was elected the Chief Executive Officer of Municipal Corporation, Calcutta, with Das as mayor. Netaji was the president of INC, Indian National Congress, from 1938 to 1939. Bose was India's most loved freedom fighter and was best known for his motivational speeches. His speech at Burma in 1944 is among the most popular. Netaji attempted to get rid of the British rule during the World War II with the help of Nazi Germany and Imperial Japan. Even today, Netaji is in our hearts and will always be in our hearts and with the future generations too. We will never forget your favor to India. Because of your efforts, we are free today. Thank you, Netaji. Thank you, Subhash Chandra Bose. Jai Hind. Thank you, Garima, for your beautiful speech. So now, get ready because Gunu is with us to tap her feet on a beautiful and patriotic song.
धन्यवाद गुरु अपने अति सुंदर नृत्य के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आयुष्मान को, जो एक कविता के माध्यम से इस महान क्रांतिकारी के विषय पर अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगे। सुप्रभात, मेरा नाम आयुष्मान है। मैं 7वीं सी का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता पेश करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है देश का गौरव गणतंत्र दिवस। हम आजादी के मतवाले झूमे सीना ताने, हर साल मनाते उत्सव गणतंत्र का मजहब जाने। संविधान की भाषा बोले, रग रग में कर्तव्य घोले। गुलामी की बेड़ियों को जब रावी तट पर तोड़ा था, उसी अवसर पर तो हमने संविधान से नाता जोड़ा था। हर साल हम उसी अवसर पर गणतंत्र उत्सव मनाते हैं। पूरा भारत झूमता रहता है और हम नाचते गाते हैं। रायसीना की पहाड़ी से शेरे भारत बिगुल बजाता है। अपने शहीदों को करके याद पुनः शक्ति पा जाता है। जय हिंद। Thank you, Ayushman, for your vibrating and patriotic poem. Kadam Kadam Badhaye Ja, a song full of energy. So now, Simran is with us to sing this beautiful song. Good morning, everyone. I am Simran from class 7A, and today I am going to present a song on Subhash Chandra Bose. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी से गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, बंदे से फिर भी तू न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, बंदे से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो दे वतन बढ़ाए जा। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो दे वतन बढ़ाए जा। दम दम बढ़ाए जा, खुशी से गीत गाए जा, कि जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। दम बढ़ाए जा, खुशी से गीत गाए जा, कि जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तो कौम पे लुटाए जा, तो कौम पे लुटाए जा। थैंक यू। धन्यवाद सिमरन अपने देशभक्ति से भरे हुए गाने के लिए। आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे मित्रों, आज की सुबह की शुभकामनाएं। आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक करिश्माई क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, खासकर भारत की सीमाओं के बाहर। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम वर्षों के दौरान क्रांतिकारी विचारों का प्रस्ताव रखा, जिसने देश और विदेश में लाखों भारतीयों की कल्पना को पकड़ लिया और राष्ट्रवाद व देशभक्ति की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया। अपने करिश्माई व्यक्तित्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण, नेतृत्व कौशल व क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्होंने भारत में स्वतंत्रता के बाद एक महान दर्जा हासिल किया। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभाती देवी के यहाँ हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद बोस इंग्लैंड चले गए और फिट्जविलियम कॉलेज कैम्ब्रिज से मैट्रिक्स की और सिविल सर्विसेज क्लियर की। अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का उनका आग्रह इतना तीव्र था कि 1921 में उन्होंने भारतीय नागरिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और बिहार और आसपास के राज्यों से युवाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 1941 में बोस एक ब्रिटिश हाउस की गिरफ्त से भागकर निर्वासन में चले गए। उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की और गुप्त रूप से जापान और जर्मनी के साथ भारत को आजाद कराने की योजना पर
काम करना शुरू किया। उन्होंने सैन्य योजनाओं को विकसित किया और रास बिहारी बोस की मदद से भारत की सेना का नेतृत्व किया। उनका जापान में गर्मजोशी से स्वागत हुआ और उन्हें भारतीय सेना का प्रमुख घोषित किया गया। उनके विभिन्न आंदोलनों और अनेक झगड़ों ने भारतीय संग्राम को हवा दी और निश्चित रूप से भारत छोड़ने के ब्रिटिश फैसले को प्रभावित किया। 1945 में उनका प्लेन क्रैश हो गया जिसमें वे गायब हो गए, जो आज तक एक रहस्य है। हम आज भी भारत माता के इस वीर संतान का जयगान करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you, Ayush Mittal, for your mesmerizing speech. It really enlightened us about Netaji's life. अंत में गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा संकलित कविता की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है, वह खून नहीं पानी है। धन्यवाद। Thank you to respected director sir, principal ma'am, teachers, parents, and my dear friends for giving your valuable and precious time to us and joining this function. Thank you. With this, I would like to end this function. Once again, thank you all. Well done, children. Well performed. And I hope next time we have more children joining us. Thank you so much, parents. Thank you so much, children. Well done.